Hello everyone, welcome to ACE UPSC. As we all know, this is a lecture video series in which we are covering PT 365 of Polity, which is the most important topic for our prelims 2025. So let's start with, in today's lecture, we will be starting with tribunal system in India. The first topic is Allahabad High Court held that appeal against an order of Central Administrative Tribunal, that is CAT, while exercising contempt jurisdictions under Administrative Tribunal Act 1985 lies below Supreme Court only, नॉट एट द हाई कोर्ट. मतलब दिस इज ट्राइंग टू से अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर अगर कोई भी तरह का केस या फिर पिटिशन डालना चाहते हैं तो वी कैन ओनली फाइल अ केस ऑन सुप्रीम कोर्ट रादर नॉट ऑन हाई कोर्ट. ओके, and this rules is written on Administrative Tribunal Act 1985. What does this Administrative Tribunal Act 1985 says? It's a quasi-judicial body. Its objective is to reduce caseload of judiciary and bring in subject expertise for technical matters or constitutional recognitions. Article 323A and Article 323B CAT was established under Article 323A. Central Administrative Tribunal is an adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of person appointed to public service and post in connection with affairs of union or other authorities under control of government. In 2010, Supreme Court clarified that subject matter under Article 323B are not exclusive and legislature are empowered to create tribunal on any subject matter under their purview एज स्पेसिफाइड इन 7th शेड्यूल. मतलब जितना भी डेटा दिया हुआ है ये सारा 7th शेड्यूल के हिसाब से काम किया जा रहा है. अब जुरिडिक्शंस क्या है, तो ईच ट्रिब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जुरिडिक्शंस टू हियर एंड डिसाइड केसेस विद इन इट्स डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. Some tribunals have appellate jurisdictions, मतलब we can appeal through it, meaning they hear appeals from decisions made by lower authorities or government bodies. मतलब वो सुन सकते हैं डिसीजंस विच आर मेड बाय लोअर अथॉरिटी और गवर्नमेंट बॉडीज. और अपील कहाँ पे लाई करता है, अपील फ्रॉम ट्रिब्यूनल यूजुअली लाई विद कंसर्न हाई कोर्ट, तो ये कंसर्न हाई कोर्ट पे लाई करता है. हाउएवर सम लॉ स्पेसिफाई दैट अपील्स विल बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, पर फिर भी कुछ अपील ऐसा भी होता है which will be heard by सुप्रीम कोर्ट. अब डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट, अब ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में क्या डिफरेंस है, तो एस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एस्टेब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इंसर्टेड विया 42nd Constitutional Amendment Act 1976 by adding 323A, that is administrative tribunal both at center and state level, and 323B for other matters like taxation and land reforms. मतलब ये एक्ट थ्रू पार्लियामेंट और इसका कैसे इंसर्शन हुआ है विद द हेल्प ऑफ 47 Constitutional Amendment Act in 1976. और ये तो मैंने आपको बताया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका पर्पस क्या है, to resolve disputes and complaints on specific matter, और courts का to interpret and maintain law and order in their jurisdictions and give decisions on civil and criminal cases. तो its role is to give decision in civil and criminal cases. अब इसका प्रोसीजर क्या है ट्रिब्यूनल का, not bound by specific procedure but governed by principle of natural justice. तो ये it's not bound by any स्पेसिफिक प्रोसीजर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से भी बाउंडेड नहीं है, पर इट इज़ गवर्न बाय अ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल एंड कोर्ट इज बाउंडेड बाय अ प्रोसीड्यूरल कोर्ट्स. और इसके मेंबर कौन है, तो अ मेंबर ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स विल विथ स्पेशल नॉलेज, और इसका जुडिशियल ओनली. और पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है, लिमिटेड टू लॉस अंडर विच दे आर सेट, और वाइल दैट ऑफ द पावर ऑफ कोर्ट पावर टू यूज ऑल इनएक्टेड लॉ बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेल, जिसमें रिसेंटली अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इन जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रूल्ड दैट बेल इज अ रूल और जेल इज द एक्सेप्शन. मतलब इट इज सेइंग दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन. और इवन इन स्पेशल स्टेटस लाइक UAPA 1967. और मोर इन न्यूज़ क्या है, कोर्ट ऑब्जर्व्स दैट डिनाइंग बेल इज डिजर्विंग केसेस इन वायलेशन ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 21. मतलब अगर इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग बेल विच यू आर डिजर्विंग इज योर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, वो आपके आर्टिकल 21 को वायलेट करता है. और बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, मतलब वैसा ऑफेंसेस विच आर बेलेबल, सेक्शन 479 ऑफ भारत नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अन
under trial prisoner can be detained is 1/2 of maximum period of imprisonment और first time offender will be given bail। मतलब पहली बार जो अगर कोई गलती करता है तो उसको बेल मिल जाता है if detained for over 1/3 of maximum period of imprisonment। अब स्पेशल लॉ क्या कहता है, सच एज मतलब सम देयर आर सम स्पेशल लॉस सच एज पॉस्को एक्ट 2012, मतलब पॉस्को एक्ट जो 2012 में लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सेट्रा ऑल्सो कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ बेल। मतलब ये स्पेशल लॉ जो है ना, जो पॉस्को हो गया और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें भी आपको बेल मिल सकता है विद ड्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्म्स ऑफ बेल इन इंडिया, कितने तरह का बेल होता है, तो रेगुलर बेल होता है, इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल और डिफॉल्ट बेल। तो सबसे पहले रेगुलर बेल में ग्रांटेड टू अ पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड एंड इन पुलिस कस्टडी। मतलब रेगुलर बेल तो वो होता है जो पर्सन अरेस्ट हो गया और वो भी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। इंटरिम बेल किसे कहते हैं, टेम्पररी बेल इज ग्रांटेड बिफोर हियरिंग फॉर रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल। मतलब बिफोर हियरिंग ही इज गेटिंग बेल। और एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, प्रिकॉशनरी बेल इज ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मतलब वैसा ऑफेंस जो नॉन बेलेबल है उससे पहले ही मैंने एक प्रिकॉशनरी बेल ले चुका है। ओके। और डिफॉल्ट बेल क्या होता है, ग्रांटेड व्हेन पुलिस फेल्स टू फाइल अ चार्ज शीट विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो डिफॉल्ट बेल मतलब वो डिफॉल्ट हो गया होगा। अब मेजर्स टेकन फॉर बेल, अब क्या क्या मेजर्स हो सकता है, तो सबसे पहला होगा हमारा प्ली बार्गेनिंग, जिसमें लिखा है इनेबल प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन डिफेंडेंट एंड प्रोसिक्यूशन। इन सेक्शन 290 ऑफ BNSS, प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन मेड टाइम बाउंड एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 30 days फॉर डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। मतलब आपका जो फ्रेम होगा ना आप पे चार्जेस, उससे 30 दिन पहले, मतलब टाइम बाउंड एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड, मतलब यू कैन गिव एन एप्लीकेशन बिफोर 30 days या फिर विद इन 30 days। फिर अप्लाइज ओनली टू द ऑफेंस पनिशेबल बाई अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब वैसा पनिशमेंट में लाई करता है जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 7 years होगा ऑफ इम्प्रिजनमेंट, विथ फर्दर रेस्ट्रिक्शंस एक्सक्लूडिंग केस इन्वॉल्विंग क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रेन और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब दूसरा है हमारा मेजर्स टेकन बाय बेल में ई प्रिजन सॉफ्टवेयर, जिसमें फैसिलिटेट्स दैट स्टेट अथॉरिटीज टू असेस डेटा ऑफ इनमेट इन एफिशिएंट मैनर। अब रिलेटेड न्यूज़ क्या है इसमें, बेल्स में 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेल्स ऑन एंटीसिपेटरी बेल अंडर Section 18 of SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989 is not applicable unless a prima facie cases under Act is made out against accused. Or Section 18 states that Section 438 of CRPC, which provides for anticipatory bail, shall not apply in retention to cases involving the offences under Act. अब दूसरा है सेक्शन 482 ऑफ BNSS 2023 कंटेन्स रिलेवेंट प्रोविजंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल। तो कौन सा प्रोविजन है, जिसमें SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसमें हम लोग कहते हैं ना, एज इन हिंदी वी डू से, इसको आप हरिजन कोटा में डाल दो, तो ये उसी का बात कर रहा है, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट commissions of offense against member of SC/ST, special court for trial of such offences and provisions for relief and rehabilitation of the victim। मतलब उनके लिए स्पेशल कोर्ट ऑफ ट्रायल्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स। और उसका साइलेंट फीचर क्या है, एक्यूज्ड मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ SC/ST। मतलब वो एक्यूज जो है ना, वो मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ SC/ST। और ऑफेंसेस इंक्लूड एम्प्लॉइंग मेंबर ऑफ SC/ST for manual scavenging, dedicating SC/ST women to DT, temple etc. as देवदासीज among others। ये बता रहा है मतलब किस पे ऑफेंस हो सकता है, मतलब कौन कौन एज एन विक्टिम हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज अंडर एक्ट बाई पब्लिक सर्वेंट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC/ST। मतलब वैसा इंसान जो अपना काम को सही से कर नहीं रहा होगा, मतलब नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज अंडर एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स में। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, सबसे पहला हमारा ग्राम न्यायालय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रेस्ड कंसर्न रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट एज मैंडेटेड बाय ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। अब इसका की फीचर क्या है, पर्पस में सबसे पहले हमारा आएगा, इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस
are not denied to any citizen by reason of social, economic or other disabilities. मतलब everyone should get justice and it should not be denied if you are having less money or if you are disabled for any kind of activities. Okay, अब statutory backing क्या है, मतलब उसको कौन बैकअप करता है, तो it is backed by ग्राम न्यायालय एक्ट 2008. अब सीट्स ऑफ ग्राम न्यायालय ये क्या कहता है, एक्ट एक्सेम्प्ट्स स्टेट ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड इन द एक्ट. मतलब इट इज दिस ऑल स्टेट्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम ग्राम न्यायालय एक्ट 2008. अब हमारा नेक्स्ट है सीट ऑफ ग्राम न्यायालय, जिसमें लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत. और इसका स्टेटस क्या है, ग्राम न्यायालय आर डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय. मतलब हर ग्राम न्यायालय में एक न्यायाधिकारी होगा इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, और वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से दिया जाएगा उस उपाधि को. और जुरिडिक्शन उसका क्या होगा, शैल बी अ मोबाइल कोर्ट. मोबाइल कोर्ट मतलब विच इज़ अ मूवेबल कोर्ट एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल jurisdictions to settle PT disputes at village level. मतलब विलेज लेवल के लिए PT disputes सेटअप करने के लिए ये रहेगा. और इट शुड बी अ मोबाइल कोर्ट फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शंस. अब डिस्प्यूट प्रोसेसेस क्या है, डिस्प्यूट्स आर टू बी सेटल्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सिलिएशंस बिटवीन द पार्टीज. तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सिलिएशंस. और दीज आर नॉट बाउंड बाई रूल ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बट बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वैसा एविडेंस विच आर इंश्योर्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसका जरूरत नहीं है, बट द एविडेंस शुड बी बाई द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कहता है, हैज़ बीन रिसेंटली रिप्लेस्ड बाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम. और अपील क्या है, अपील इन क्रिमिनल केसेस लाई टू कोर्ट ऑफ सेशंस एंड सिविल केसेस लाई टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी डिस्पोज्ड विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग एन अपील. मतलब जिस दिन से वो अपील किया जाएगा उससे 6 महीने के अंदर अंदर उस सारे केस को सॉल्व कर देना है जो भी अपील किया गया है. ओके, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, झारखंड गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड अ कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट सेंटर एलिजिंग डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो झारखंड में, मतलब जो रांची में हाई कोर्ट है ना, उसमें चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट लेट हो रहा है, इसीलिए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाया है सेंटर पे फॉर डिलेइंग इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, डिफाइंस अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ऑफ आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट. मतलब कौन सा आर्टिकल है हमारा, तो आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 ये पावर देता है टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट, जो भी गलती करेगा. अब 2 टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट क्या है, एक सिविल है, एक हमारा क्रिमिनल है. तो सिविल में क्या आता है, विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब जान के गलती कर रहे हैं, टू एनी जजमेंट, मतलब किसी जजमेंट को लाने के लिए, डिक्री, डायरेक्शंस, अदर रिट और अदर प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट. और क्रिमिनल कंटेंट में क्या है, publications of any matter which scandalizes or lowers the authority of any court. मतलब किसी अथॉरिटी या फिर कोर्ट की डिग्निटी को डाउन करता है, प्रिजुडाइसेस और इंटरफियर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग को भंग करता है, एज इन इट इज डिसरप्टिंग द प्रोसीजर्स, और इंटरफियर्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जज. मर्सी पिटिशन, अब मर्सी पिटिशन क्या कहता है, प्रेसिडेंट हैज रिजेक्टेड द मर्सी पिटिशन ऑफ लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर दिसंबर 2004 अटैक. मतलब प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है लश्कर ए तैयबा का, जो टेररिस्ट अटैक ड्यूरिंग दिसंबर 2004 अटैक के दौरान किया गया था. अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिलेटेड प्रेसिडेंट पावर ऑफ मर्सी पिटिशन, तो हम लोग को तो ये पता है, एज इन आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंड, रेमिट और commute the sentence of person convicted of any offences where sentence is by a court martial for any offences against any law relating to matter to which the executive power of union extends a sentence to death. मतलब president के पास power है, वो with the help of all this grants can give a mercy petition to a convict. Okay, अब curative petition क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट quashes arbitral award against Delhi Metro Rail Corporation. मतलब सुप्रीम कोर्ट has quashed the arbitral award against Delhi Metro Rail Corporation. अब ये curative petition क्या है, it is the last constitutional remedy available. मतलब it's the last availability of any kind of mercy to a person
whose review petition article 137 has been dismissed by Supreme Court। मतलब अगर उसने review petition डाला हो that please have a look on my केस विच यू हैव गिवन द जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई इंसान बोलता है तो उसके लिए लास्ट कोई ऑप्शन है तो वो है हमारा क्यूरेटिव पिटीशन। गिवन शेप इन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। Curative power of court flows from Article 142, power to do complete justice, मतलब full justice will be provided to any person। Curative petition is entitled if a petitioner establishes violation of principle of natural justice, मतलब वो violate करता है। Judge failed to disclose his connection with the subject matter, there is apprehension of bias and judgment adversely affected पिटिशनर्स। अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या है, मतलब FTSCS, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FTSCS कहेंगे, आर मच मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग रेप केस, मतलब इट्स अ एफिशिएंट वे टू हैंडल रेप केस सो दैट वी कैन गिव फास्ट जजमेंट टू दैट केस एंड दोज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट इज पॉक्सो एक्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शंस। फिर अबाउट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ये क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो हमारे पास दो तरह का स्कीम होता है ना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में टोटल 100% रहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60-40 फॉर नॉर्मल स्टेट एंड 90-10 फॉर, दैट इज 90:10, दैट इज 90 फ्रॉम सेंटर साइड एंड 10 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, मतलब हिली रीजन जो होते हैं ना तो उसके लिए। और यहाँ पे 60-40 में 60 होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40 होता है हमारे नॉर्मल स्टेट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फंडिंग सेंटर बियर्स इस एक्सपेंडिचर फॉर निर्भया फंड और इम्प्लीमेंटेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ लॉज एंड जस्टिस। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ रेप केसेस एंड दोज कमिंग अंडर पॉक्सो एक्ट, मतलब स्विफ्ट मतलब जल्दी से डिसीजन उसको दे पाए। नाम ही में बता रहा है ना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, जो कि फास्ट डिसीजन दे पाए। अब 755 FTSCs आउट ऑफ डिसाइडेड 1023, मतलब डिसाइड कितना हुआ था 1023, जिसमें से 755 इंक्लूडिंग 410 एक्सक्लूसिव फॉर पॉक्सो कोर्ट्स आर फंक्शनल इन 30 स्टेट, मतलब 30 स्टेट में इतने सारे कोर्ट प्रेजेंट है। और FTSCs आर लिंक टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। तो ये कहाँ से लिंक्ड है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से। अब जीरो FIR क्या है, जीरो FIR केस अगेंस्ट अ फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एलिजिंग मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल कमेंट अगेंस्ट तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। मतलब अब ये व्हाट डू यू मीन बाय जीरो FIR विच हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर हु वाज मेकिंग अ डेरोगेटरी रिमार्क ऑन तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। इट रिफर्स टू FIR दैट आर रजिस्टर्ड irrespective of area where the offence is committed, मतलब it does not matter from where the offence has been committed, but if it is once registered it is transferred to the appropriate police station for investigation। तो वहाँ की जो सबसे सही, मतलब वहाँ की जो सबसे appropriate पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे केस फाइल हो जाएगा। और नो रेगुलर FIR नंबर इज प्रोवाइडेड, जिसमें कोई FIR नंबर भी नहीं रहेगा। The relevant police station registered a new FIR for investigation। The provision of zero FIR is under section 531(1) of भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बेस्ड ऑन जस्टिस वर्मा कमेटी। तो कौन से कमेटी में ये बेस्ड है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी। रिकमेंडेशन स्टैब्लिश्ड आफ्टर 2012 निर्भया केसेस, मतलब जितने भी रिकमेंडेशंस है ना वो कब स्टैब्लिश किए गए थे, आफ्टर 2012 निर्भया केस विच हेल्ड इन दिल्ली। डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर, that is Supreme Court is here to petition challenging marital rape exception, that is MRE, under section 375 and section 63 of Indian Penal Code and भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 रिस्पेक्टिवली। अब ये मैरिटल रेप केस बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, अब ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 हेल्ड दैट मैरिटल रेप एक्सेप्शन स्टेम्स फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर क्या है, लीगल डॉक्ट्रिन अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ दैट प्लेसेस अ मैरिड वुमेन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम एज अ सिंगल एंटिटी। इट सस्पेंड्स द वेरी being or legal extension of woman after marriage. In the theory, it seeks to pass on her property to the husband, restricting her ability to hold property, enter into contract, etc. Okay, hope you are understanding कि क्या कह रहा है। अब doctrine of harmonious construction, जिसमें while refusing to condone the delay, Supreme Court laid down principle to provide harmonious construction to section 3 and 5 of Limitation Act 1963, जिसमें notion of condonation of delay encompasses discretionary power of court to extend prescribed time limit for
फिलिंग एन अपील एप्लीकेशन अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या कहता है? इट मीन्स दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अब यहाँ पे टॉपिक का डिस्कशन हुआ है, इट मीन्स दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज, अगर दो लॉ एक साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहे हैं, देयर इंटरप्रिटेशन शुड बी इन वे इन विच स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ द लॉ आर मेंटेन। मतलब दोनों का जो भी भावार्थ होगा ना, मतलब एसेंस जो भी होगा दोनों लॉ का, वो मेंटेन किया जाएगा, विच इज डन बाय हार्मोनाइजिंग लॉ। और इट्स ओरिजिन इज ट्रेस्ड बैक टू फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से ट्रेस किया गया है फॉर मेंटेनिंग इट्स हार्मोनी, तो वो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से लिया गया है, ओके, टू मेंटेन इट्स हार्मोनी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर और बिल, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। तो ये क्यों न्यूज़ में है? द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ दैट वेयर पास्ड बाई पार्लियामेंट इन 2023 हैव कम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1, 2024। तो 3 न्यू बिल जो पास किया गया था पार्लियामेंट से 2023 में, वो अब इफेक्ट में आ गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2024। दो तीनों बिल का क्या नाम है? तो भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड द लास्ट वन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते तीनों को। तो सबसे पहले हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें इट रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड IPC 1860 द प्रिंसिपल लॉ ऑन क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ इंडिया। तो ये रिप्लेस किया था IPC 1860 को। अब बैकग्राउंड क्या था? प्रायर टू IPC 1860 पार्लियामेंट्री कैरेक्टर एंड एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ एक्सेट्रा, ड्राफ्ट ऑफ पेनल कोड 1837 अंडर थॉमस Babington or effect of 1857 rebellion, IPC was finally enacted in 1860. Post enactment of IPC 1860, several law commission report have recommended amendment to IPC on subject including offense against women, food, adulteration, death penalty etc. अब इसके की प्रोविजंस क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। मतलब कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर छोटा छोटा ऑफेंस, मतलब पेटी ऑफेंस के लिए। इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज अ मेजर फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ गैंग रेप हैज बीन इंक्रीज्ड। और उसके बाद ऑल्सो क्रिमिनलाइज्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमेन बाय डिसेटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। मतलब कोई अगर झूठा वादा करके फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उनके लिए भी प्रावधान लाया गया है। इट रिमूव्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन एंड इंस्टेड पेनलाइज द फॉलोइंग, दैट इज एग्जिटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन और subversive activities, encouraging feeling of separatist activity और endangering the sovereignty और unity and integrity of India। ये सारे इसलिए include है इसमें, ओके। फिर it defines organized crime as any continuing unlawful activity including kidnapping, extortion, contract killing, land grabbing and cyber crime etc. murder or grievous hurt by a group or ground of race, caste or community, sex, place of birth, language or personal belief etc. member of such group shall be punished with death। और मतलब इन सारे ग्रुप को कैसे पनिश किया जाएगा? with death और life imprisonment and a fine in case of murder or imprisonment for a term of up to 7 years and a fine in case of grievous hurt। तो ये था उनका पनिशमेंट। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये क्या कहता है? इट रिप्लेसेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसको रिप्लेस कर रहा है? CRPC 1973। और पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? IPC 1860 को कौन रिप्लेस कर रहा है? भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं। इट रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC विच प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर द वेरियस एक्ट। तो ये किस पे निर्भर था? तो अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1861 अंडर ब्रिटिश रूल एंड लेटर सब्स्टिट्यूटेड फ्रेश कोड सक्सेसिव इनेक्ट इन 1872 एंड 1882। इट हैज अंडरग्राउंड सेवरल अमेंडमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 1898, 1923 एंड 1955। तो इसका अमेंडमेंट इस टाइम हुआ था। और CRPC 1973 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया in its 41st report recommended a significant revision of the code which led to creation of CRPC 1973। तो ये एक
न्यू प्रोविजन लाने का प्रावधान लाया गया था, जिसमें कोडिफाइड फॉर्म में सीआरपीसी 1973 में आया था। अब इसका की प्रोविजन क्या है? डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, तो डिटेन करके रखा हुआ है अंडर ट्रायल को। फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैज कंप्लीटेड 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड से रिलीज कर दिया जाएगा। किनको? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो सबसे पहली बार गलती करेंगे और जो अपना 1/3 ऑफ मैक्सिमम टाइम पीरियड जेल में काट चुके होंगे। इफ एन एक्यूज्ड हैज स्पेंट हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट स्पेसिफाइड फॉर ऑफेंस ही शैल बी रिलीज्ड बाय कोर्ट ऑन बेल, तो जो इंसान जो एक्यूज स्पेंड हाफ ऑफ इस मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट इन द ऑफेंस, वो बेल के द्वारा छूट सकते हैं। This does not apply to the offence punishable by death, life imprisonment and person against whom proceedings are pending in more than one offences, तो ये इन पे लागू नहीं होता है जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है और जिनका एक से ज़्यादा केस अभी तक फिर भी पेंडिंग चल रहा है। ओके, अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है? एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग रेप केस, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उनका हो सकता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किसका हो सकता है? मैंडेटरी फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद द लीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, और उसके बाद specimen, that is it empowers a magistrate to order any person to provide specimen signature, handwriting, finger impression and voice sample, तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा किन्हीं को भी बोला जा सकता है। और टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर क्या है? फॉर इंस्टेंस सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, गिविंग जजमेंट, इन्फॉर्मिंग विक्टिम ऑफ प्रोसेसेस, इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। हमारा लास्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, विच गवर्न्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस इन इंडियन कोर्ट इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जिसका बैकग्राउंड क्या है? एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1872, तो एविडेंस एक्ट कब आया था? एज इन कब इनेक्ट हुआ था? तो 1872, टू कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच कोर्ट कुड कंक्लूड एंड प्रोनाउंस द जजमेंट। अब इसका की प्रोविजंस क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस विल हैव same legal effect as paper record, will allowed oral evidence to be as an electronically. It includes statements made before court by witness in relations to fact under inquiry. अब joint trial क्या है? Trial of multiple person, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन का ट्रायल, वेयर अन एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्ड और हैड नॉट रिस्पॉन्डेड टू अरेस्ट वारंट, मतलब उनके द्वारा जो अरेस्ट वारंट जब निकला था तो वो रिस्पॉन्ड नहीं किए थे, इसीलिए विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट ट्रायल। अ जॉइंट ट्रायल रिफर्स टू द ट्रायल ऑफ वन और मोर देन वन पर्सन ऑफ सेम ऑफेंसेस, मतलब एक ही ऑफेंस के लिए 2-3 लोगों को एक साथ ट्रायल में लाया जा सकता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तो ये आप लोगों ने, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था ना, के एस पुट्टास्वामी के 2020 उनके तहत ही आया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड असेंट टू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP 2023 अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 क्या है? इट एम्स टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा वाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, तो इट एम्स टू प्रोटेक्ट people's own data, मतलब they are having their own right, ensuring individual to right to protect their data. It protects digital personal data by providing obligations of data fiduciaries, the right and duties of data principals और financial penalties for breach of rights. Okay, चलिए पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। obligation of data fiduciary, that is person, companies and government entities who processes data for data protection, that is collection, storage or any other operations on personal data. The rights and duties of data principals, that is the person to whom the data relates, मतलब वो किसके, मतलब वो डेटा किससे रिलेट करता है, और he has the rights and duty of data principals, और financial penalties for breach of rights, duties and obligations, मतलब financial penalties भी लग सकता है in case of data breach. अब की provision of the act क्या है? applicability, मतलब वो कहाँ अप्लाई होता है? processing of digital personal data within India in digital form or in non-digital form and digitized subsequently, processing of personal data outside India if it is for offering goods or services in India, or does not apply to, मतलब it does not apply to personal data processed for any personal purposes, or personal data that is made for or caused to be made publicly available by data principal to whom such personal data relates, or any person who is under legal obligation to make such personal data publicly available, मतलब अगर वो खुद से डेटा को पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब कंसेंट मतलब इजाज़त, दैट इज पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पसेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल
who shall have right to withdraw consent at any time. Consent will not be required for legitimate uses, including provisions of benefits or services by government, medical emergencies, etc. For children or person with disabilities, consent will be provided by द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब DPBI ये क्या है? प्रोवाइड्स फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ DPBI बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका की फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। तो ये कंप्लायंस मॉनिटर करते हैं और पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। डायरेक्टिंग डेटा फिड्यूशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच, मतलब इन केस ऑफ डेटा ब्रीच डायरेक्ट डेटा फिड्यूशरीज। और हियरिंग ग्रीवियंसेस मेड बाय द अफेक्टेड पर्सन, मतलब ये प्रॉब्लम भी हियर करते हैं जिनका डेटा ब्रीच हो रहा होगा। और बोर्ड मेंबर विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 years। तो टेनवर कितना होगा बोर्ड मेंबर का? 2 years। एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और वो फिर से रीअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। अपील अगेंस्ट इस डिसीजन विल लाई विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब TDSAT। और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल ये क्या कहता है? डेटा प्रिंसिपल विल हैव द राइट टू obtain information about the processing, seek corrections and erasure of personal data, grievance redressal, or right to nominate a person to exercise rights in case of data or incapacity. Data principal must not register a false or frivolous complaint and furnish any false particulars, मतलब it should not register any false document or false case, or violation of duties will be punished up to penalties up to 10,000, मतलब in case of violation you will have to pay 10,000 rupees as an penalty. Obligation of data fiduciaries ये क्या है? Data fiduciary entity determining the purpose and means of processing must ensure the accuracy and competence of data, build reasonable security safeguard to prevent data breach, inform DPBI and affected person in event of breach, or erase personal data as soon as the purpose has been met and retention is not necessary for legal purpose, मतलब कोई भी लीगल पर्पस के लिए उनका डेटा नहीं रखना है और जैसे ही उसका काम हो जाता है उनका डेटा को डिलीट कर देना है। ओके, अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डेटा फिड्यूसरीज एज SDF, मतलब किसी भी डेटा फिड्यूसरीज को सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज बोला जा सकता है, बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड, रिस्क टू राइट ऑफ डेटा principal, potential impact on sovereignty and integrity of India, security of the state, risk to electoral democracy or public order. Significant data fiduciaries will have certain additional obligations, including appointing a data protection officer and इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर एंड अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें से एक्सेप्शन क्या है? राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरीज एक्सेप्ट डेटा सिक्योरिटी विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस, इंक्लूडिंग फॉर नोटिफाइड एजेंसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सोवेरेनिटी, public order, etc. for research, archiving or statistical purposes, for startups or other noted categories of data fiduciaries to enforce legal rights and claims, prevention and investigation of offences, to perform judicial or regulatory functions, to process in India personal data of non-resident under foreign contract. Central government may exempt certain activities in interest of security and public order, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटी को छोड़ा जा सकता है, मतलब ढील दे सकते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सो दैट सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। ओके, मतलब सम डेटा, ऐसा डेटा होता है ना जो बाहर नहीं बता सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट दैट। अब प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, अब पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन को कैसे प्रोसेसिंग किया जाएगा? वाइल प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, डेटा फिड्यूशरी मस्ट नॉट अंडरटेक, मतलब क्या अंडरटेक नहीं कर सकते हैं? प्रोसेसिंग दैट इट लाइकली टू कॉज एनी डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन वेलबींग ऑफ चाइल्ड, मतलब उनकी अपग्रोथ को अफेक्ट करता हो। ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र, फिर मतलब अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया except to countries restricted by government, मतलब you can transfer data but there are certain restriction on given countries which should not be done. अब penalties क्या है? in case of any fault is seen, act specifies penalty for various offences such as up to 200 crore for non-fulfillment of obligation for children and rupees 250 crore for failure to take security measures to prevent a data breach, मतलब इनके डेटा ब्रीच हो जाता है और आपके द्वारा कोई गलती के कारण डेटा ब्रीच हो जाता है तो आपको 250 करोड़ तक फेलियर चार्जेस देना पड़ेगा, और इन केस ऑफ पेनल्टी फॉर वेरियस ऑफेंसेस अप टू 200 करोड़ भी दे सकते हो आप। ओके, मतलब हो सकता है आपको उतना का पेनल्टी लग जाए।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024। अब वाई न्यूज़ है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन हैव नोटिफाइड द रूल अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 2024, जिसमें की हाइलाइट्स क्या है, प्रोवाइड्स फॉर वेन्यू इन चार्ज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग फाइलिंग FIR इफ प्राइमा फेसिया केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स और ऑफेंस इन कंडक्टेड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन इन रिपोर्टेड। मतलब अगर पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई तरह का अनफेयर मीन्स अगर होता है तो FIR इंक्लूडिंग FIR और अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। प्रोवाइड फॉर कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। मतलब एक इंटरिम कमेटी फॉर्म किया जाए सो दैट फॉर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अनफेयर मीन्स और सर्विस प्रोवाइडर इज एन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेस एंटिटी एक्सेट्रा विच इज एंगेज्ड बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन चलना है। और पीरियोडिक रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंसिडेंट ऑफ अनफेयर मीन्स और ऑफेंसेस in conduct of public examination to public examination authority by regional officer along with detail of action taken। तो जितना भी एक्शन लिया जाएगा उनका डिटेल भी प्रेजेंट होना चाहिए और पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। अब पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये एक्ट क्या कहता है? तो सबसे पहले इसमें अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स अथॉरिटीज असेस्ड और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब कोई भी तरह का क्वेश्चन पेपर को लीक करना या फिर अनऑथराइज एसेस होना, और आंसर की असिस्टिंग अ कैंडिडेट ड्यूरिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन, टैंपरिंग विद कंप्यूटर, मतलब कोई भी तरह का ट्रिकल इफेक्ट या फिर कोई तरह का अनफेयर मीन्स ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर और रिसोर्स, कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। अब उसका पनिशमेंट क्या है? फॉर पर्सन रेस्टोरिंग टू अनफेयर मीन्स क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नो लेस देन 3 years बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 years एंड विथ फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख रुपए तक का फाइन, और नॉट लेस देन 3 year विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 year। फॉर सर्विस प्रोवाइडर और एनी पर्सन ग्रुप कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है तो इम्पोजिशन ऑफ फाइन अप टू 1 crore होगा। एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम इट, और जितना एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए पैसा लगता है वो भी कुछ अमाउंट उनसे लिया जाएगा। ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, दैट इज पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो कॉग्निजेबल अरेस्ट वही होता है ना जिसके लिए हमें अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। और नॉन बेलेबल विच इज़ नॉट बेलेबल बाई, मतलब पहले से बेल नहीं हो सकता है, मतलब कोर्ट हियरिंग आपको होना पड़ेगा। एंड नॉन कंपाउंडेबल, दैट इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द विक्टिम एंड एक्यूज्ड इज नॉट अलाउड, मतलब आप बाहर केस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, मतलब आपको कोर्ट ऑर्डर से ही कोई तरह का न्याय मिल सकता है। होप यूर अंडरस्टैंडिंग। पब्लिक एग्जामिनेशन दैट इज मीन्स एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी एंड स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, मतलब किसी स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड शेड्यूल से वो एग्जाम लिया जाएगा फॉर पब्लिक पीपल, फॉर नॉर्मल पब्लिक, और कंडक्टेड बाय सच ऑर्डर अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो कहता है मल्टीपल सेक्शन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 केम इनटू इफेक्ट, तो ये इफेक्ट में आ चुका है। अब व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन Act 2023, it aims to spend law relating to development, expansion and observation of telecommunication services and telecommunication network and is guided by principle of inclusion, security and growth and responsiveness. It repeals Indian Telegraph Act 1885 and Indian Wireless Telegraph Act 1933 owing to huge technical advancement in telecom sector and technologies। तो ये किसको रिपील करता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993 ड्यू टू हाई एडवांसमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। अब इसका की प्रोविजंस क्या है? तो सबसे पहले इसमें आता है पैरामीटर्स, जो हमारा है असेसमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को असेस करना है, जिसका डिटेल्स क्या है? स्पेक्ट्रम एलोकेशन विल बी थ्रू ऑक्शन फॉर स्पेसिफाइड यूजेस ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया जाएगा। ओके, वो ऑक्शन के थ्रू किया जाएगा। और स्पेसिफाइड पर्पस इंक्लूड, जिसमें जैसे हम लोग लिखा है ना फॉर स्पेसिफाइड यूज, तो स्पेसिफाइड पर्पस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज एक्सेट्रा। फॉर फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन फॉर स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन लाइन
विथ ग्लोबल नॉर्म्स, मतलब ग्लोबल नॉर्म के हिसाब से फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। अब रो वो क्या है, राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, जिसका मतलब इट शैल बी ग्रांटेड ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस, मतलब ये किसी एक के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मली सब के लिए रहेगा। ओके, एंटिटीज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन सीक रो दैट इज फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रॉपर्टी ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर, एग्जांपल प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेज, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब मतलब DND रजिस्टर्ड एंड अलाउइंग यूजर टू रिपोर्ट मॉलवेयर ऑन specified messages. Expand scope of universal service obligation fund, that is it will now become Digital Bharat Nidhi, that is under control of central government. The fund can be used to support research and development of telecommunication services, technologies, products and pilot projects. A power of interpretations and searches, message can be intercepted, monitored or blocked on certain ground, including security of the state, public order and prevention of incitement of offenses. Authorizations for telecommunication related activities, तो कहाँ से authority derive किया जाएगा, prior authorization of central government need to provide it, operate, maintain and expand new telecommunication services and to possess radio equipments. उसके बाद रेगुलेशन ऑफ OTT मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, तो OTT प्लेटफॉर्म विल नॉट बी रेगुलेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, तो OTT प्लेटफॉर्म इनके तहत नहीं आ रहा है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन, जो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया रिकॉर्डेड 60 इंटरनेट शटडाउन इन 2024, तो 2024 में 60 टाइम रिकॉर्डेड इंटरनेट शटडाउन हुआ है, द लोवेस्ट इन 8 ईयर, तो ये सबसे लो है 8 ईयर में। अब इंटरनेट शटडाउन ये क्या होता है, इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन और विद इन अ लोकेशन फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑफन टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिससे हम लोगों ने सुना था ना, जब कश्मीर मतलब जब 376 को रिपेल किया गया था, तो कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को बार कर दिया गया था। तो वैसे हम लोगों ने यहाँ भी देखा, मणिपुर में भी, वहाँ भी इंटरनेट सर्विसेज को बैंड कर दिया गया था। तो वही ये कह रहा है, फॉर एनी स्पेसिफिक पॉपुलेशन विद इन अ लोकेशन, तो कहीं भी आप इंटरनेट को शट डाउन कर रहे हो, क्यों शट डाउन कर रहे हो, सो दैट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव दैट्स नॉट द मैटर, बस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके। ओके, अब रीज़न फॉर शटडाउन क्या है, फॉर नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंट सोशल अनरेस्ट, प्रिवेंट चीटिंग और सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो जैसे प्रिवेंट चीटिंग में भी हमारा रहता है ना, स्कूल में लगा हुआ रहता है जैमर, सो दैट internet facility is not provided to transfer the information. Okay, a provisions for internet shutdown, अब क्या क्या provision है, current suspension of telecom services including internet shutdown is governed by temporary suspension of telecom services, public emergencies or public safety rules 2017 notified under Indian Telegraph Act 1885। तो ये था, इसके तहत इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है। इट प्रोवाइड फॉर टेम्पररी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन रीजन और ग्राउंड फॉर पब्लिक इमरजेंसीज अप टू 15 डेज एट वंस। तो एक बार में आप 15 दिन के लिए इंटरनेट को शटडाउन कर सकते हैं, उसको टेम्पररी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज बोला जाएगा। इन रीजन ऑफ ग्राउंड पब्लिक इमरजेंसी, तो पब्लिक इमरजेंसी के कारण। इन 1885 Act empowers central government to regulate various types of telecom services including internet service and grant license for them, तो उनको लाइसेंस देने के लिए। अब ऑर्डर ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर टू बी इशूड बाय यूनियन गवर्नमेंट, होम सेक्रेटरी ओनली। तो ये टेम्पररी शट किनके द्वारा किया जा सकता है, तो ये यूनियन स्टेट होम सेक्रेटरी ओनली। ओके, under 2017 rule, 3-member review committee headed by cabinet secretary at central level and chief secretary at state level, मतलब सेंट्रल लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टेट में हमारा चीफ सेक्रेटरी, मतलब हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, रिव्यू टेलीकॉम इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। तो इनके द्वारा रिव्यू किया जाता है कि इज इट राइट और रॉन्ग, और ये सही वैलिड रीजन के लिए बंद किया गया था या नहीं किया गया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन 2020, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 का क्लॉज 1A एंड अकॉर्डिंगली एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन सेम मस्ट बी अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2। मतलब ये क्या कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब वो 19 क्लॉज 1 का ए में आ जाता है। और एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेम मस्ट बी अकॉर्डेंस विद, मतलब वो किसके
अकॉर्डिंगली उनको रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। तो इट शुड रिलाई विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इन रिलेशन टू इंटरनेट शटडाउन कोर्ट हैज पास्ड फॉलोइंग डायरेक्शन। अब कोर्ट क्या क्या डायरेक्शन पास किया गया है? In order, suspending internet services indefinitely is impermissible under 2017 rule, और suspension can be utilized for temporary duration only, मतलब indefinite period time के लिए आप उसको suspend नहीं कर सकते हैं। In case if you are suspending it, it should be for temporary duration only, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था maximum of 15 days, वो हमारा temporary duration था। ओके, for any order suspending internet issue under section rule must adhere to principle of proportionality and must not extend beyond necessary duration। तो उससे ज़्यादा आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट अंडर सस्पेंशन रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और इन केस अगर कोई तरह का प्रॉब्लम नजर आता है तो देयर माइट बी अ फाइलिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 CPA 2019, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 2007 जजमेंट which ruled service rendered by lawyer are covered under Consumer Protection Act 2019 reenacted in 2019। अब about CPA क्या है? CPA 1986 was enacted to provide better protection ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो बेटर प्रोटेक्शन के लिए किन के लिए? कंज्यूमर और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, तो कोई तरह का कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाले को रिप्लेस करता है और उसको स्ट्रेंथन भी करता है। द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उसको और स्ट्रेंथन करता है। उसका की प्रोविजन क्या है? ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया, मतलब और भी उसमें बहुत कुछ लाई कर जाएगा। तो इंक्लूड पर्सन हु बाई अवेल ऑफ गुड्स सर्विस ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब सारे कस्टमर जो ऑनलाइन मीन्स में कुछ खरीदते हैं। तो इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड फॉर रीसेल और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पसेस, तो अगर वो कॉमर्शियल पर्पसेस और रीसेल के लिए अगर उसको बाई कर रहे हैं तो वो उसमें रिलाई नहीं करेगा, मतलब ये उस लॉ के अंदर नहीं आएंगे। एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एज एन एडवाइजरी काउंसिल, तो ये एक एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप किया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, टू रेंडर मतलब टू एडवाइस प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, तो प्रोटेक्शन और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन राइट्स के लिए। इट्स चेयरपर्सन शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में निर्वाचन किए जाएंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, a central authority to promote, protected and enforce consumer rights referred to infographic। अब CCPA shall consist of chief commissioner, तो उनमें एक chief commissioner and such member of other commissioner as may be प्रिस्क्राइब टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब CCPA शैल हैव अ इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, तो एक डायरेक्टर जनरल होंगे और एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा उनका, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल टू इन्वेस्टिगेट ऑन सर्टेन मैटर फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। स्ट्रीमलाइन डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म, जिसमें इनेबल मीडिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड ई फाइलिंग कंप्लेंट्स, मतलब ई फाइलिंग मतलब आप इंटरनेट के थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी डन। अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल वो क्या है? एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक सेल है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। इट इज अट्रैक्टेड फॉर नेशनल कमीशन ईच टू रीजनल बेंचेस एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कमीशन ऑफ स्टेट्स। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, ये क्या कहता है? अगेंस्ट मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये किसके अगेंस्ट किया जाएगा? अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उनके अगेंस्ट। पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर गलत तरीका से एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ गलत एडवर्टाइजमेंट किया गया है उनके लिए भी कोई तरह का पेनल्टीज लाया गया है, जिसमें इम्पोज ऑफ CCPA ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन एंडोर्स अप टू ₹10 लाख एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 2 years, मतलब 2 साल का सजा भी हो सकता है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जा सकता है। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस फाइन में एक्सटेंड अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख का फाइन भी हो सकता है एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years भी हो सकता है। 6 कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर एक्ट 2019, जिसमें राइट टू सेफ्टी भी आता है, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हियर, राइट टू सीक रिडर्सल और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। अब रिलेटेड न्यूज़ क्या है? CCPA issued advisory or advertisement of illegal activities. Advisory emphasis on prohibition of advertising, promotion and endorsement of unlawful activities prohibited under various laws. अब reason for advisory क्या है? Increasing instances for direct as well as surrogate advertisement and endorsement of activities considered illegal such as betting or gambling, मतलब betting और
गैम्बलिंग के लिए भी ये प्रावधान लाया गया है। स्टेटस ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन इंडिया, इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th schedule of the constitution, listed by entry 34 and 62 for the purpose of taxation of the state list based on Unswitched Public Gambling Act 1867. Most state government has enacted their own law to detail with betting and gambling within their jurisdictions. In 2023, Ministry of Information and Broadcasting issued advisory on advertisement including surrogate advertisement of online betting platform. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये क्यों न्यूज़ में था? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज लिस्टेड डाइवर्शन ऑफ फॉरेन फंड फॉर कैरिंग आउट एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज और इनसाइटिंग मैलिशियस प्रोटेस्ट एंड रिलीजियस कन्वर्जन्स टू डिनाई और कैंसल FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज लिस्टेड डाइवर्शन ऑफ फॉरेन फंड, मतलब फॉरेस्ट फंड को किन चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है? तो कैरी आउट एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और मैलिशियस प्रोटेस्ट और रिलीजियस कन्वर्जन्स अबाउट। अब हम FCRA के बारे में पढ़ते हैं। FCRA मीन्स डोनेशन, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो इन अप्रूवल एंड रिजेक्शंस थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड एंटीसीडेंट्स। तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या इम्प्लीमेंट किया जाता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब मेजर प्रोविजन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पोस्ट 2020 अमेंडमेंट, ये क्या कहता है? तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला हमारा था फॉरेन फंड। तो फॉरेन फंड किसको कहा जाएगा? प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड दो रजिस्ट्रेशन विथ मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ एवरी ऑफिस बियरर ऑफ NGO। मतलब आप कहाँ से पैसा ला रहे हो और किनके पास पैसा आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ आधार रजिस्ट्रेशन। और प्रोहिबिट्स रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड रिफर्स इमेज हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कैन नॉट रिसीव फॉरेन funds, judge and government services, journalist or newspaper and media broadcast company, member of legislature and protection parties or their office bearers, organizations of police nature, ये लोग कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब FCRA अकाउंट ये क्या है? डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट इन सच ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू रिसीव फंड। तो वो जो अकाउंट जहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा उस दैट शुड बी branch of State Bank of India in New Delhi, and no fund other than foreign contribution can be received or deposited in it. It can't be transferred to any other persons or NGOs। मतलब it can't be transferred to any NGO or any person the amount which is received as फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब वैलिडिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन, उसका वैलिडिटी क्या है? वैलिड अप टू 5 years। मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, आधार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा तो 5 years। एंड NGO आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूएबल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मतलब वो वैलिडिटी रहेगा 5 साल और जैसे ही वो एंड होने का रहेगा ना, मतलब खत्म होने का रहेगा, उसका 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब रिडक्शंस इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यूज ऑफ फंड्स इज लिमिटेड टू पर्पस फॉर विच इट was received with maximum limit of 20%, earlier 50% to meet administrative expenses। अब सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ये क्या कहता है? कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड इन केस ऑफ contraventions government can restrict usage of utilized foreign contribution after an inquiry। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, जिसमें पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 केम इनटू अफेक्ट विच रिपील्स इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998 को ये रिपील करता है। कौन? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। अब प्रोविजंस ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 ये क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट सर्विस मतलब DGPS विल बी अपॉइंटेड टू हेड इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट को हेड कौन करेगा? DGPS। DGPS विल हैव अ पावर टू मेक रेगुलेशंस ऑन मैटर्स सच एज चार्जेस फॉर सर्विसेज, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, अ पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स, जिसमें गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट एन आर्टिकल ट्रांसमिट थ्रू इंडिया पोस्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना, गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट एन आर्टिकल ट्रांसमिटेड थ्रू इंडिया पोस्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। अब वो स्पेसिफिक ग्राउंड क्या है हमारा? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, emergencies और public safeties। अब exemption from liabilities ये क्या है? पोस्ट ऑफिस विल नॉट ऑकर एनी liability
with regard to its services, except such liabilities as may be prescribed with regard to service provided by post office, or there is no penal provision prescribed in the act. पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, तो ब्रिटिश एरा में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स पोस्ट ऑफिस इन 1727, तो 1727 सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने ओपन किया था फर्स्ट पोस्ट ऑफिस। और लॉर्ड डलहौसी के दौरान रिकॉग्नाइज्ड इंडिया पोस्ट ऑफिस एज सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। और प्रेजेंट साइट ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता वाज साइट ऑफ फर्स्ट फोर्ट विलियम्स। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज़, जिसे सबसे पहले है हमारा NHRC, जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, दैट इज GANHRI, deferred accreditations of NHRCI, that is National Human Rights Commission of India, for second year in a row. That is accreditation of NHRCI का मतलब क्या होता है, NHRCI got A status of accreditation फर्स्ट टाइम इन 1999। तो सबसे पहले इसको एक्रेडिटेशन स्टेटस कब मिला था, 1999 में। इन 2016 NHRCI accreditations was deferred by a year, after which it received a A rating in 2017 by SCA of GANHRI। तो GANHRI हमारा क्या था, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। What do you mean by Global Alliance of National Human Rights Institution, that is GNHRI? तो established in 1993 an international coordinating committee, तो it's an international coordinating committee of national institution for promotion and protection of human rights. Since 2016 it has been known as GANHRI। अब इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 120, इंक्लूडिंग इंडिया एज ए मेंबर फ्रॉम 2023। अब सब कमिटी एंड एक्रीडेशंस SCA, ये क्या है, GANHRI थ्रू SCA, दैट इज सब कमिटी ऑन एक्रीडेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एक्रीडिटिंग NHRIs इन कंप्लायंस विथ पेरिस प्रिंसिपल। तो जो पेरिस प्रिंसिपल होगा उनके तहत एक्रीडिटिंग ऑफ NHRI को किया जाएगा, मतलब क्रेडिट दिया जाएगा। SCA comprises one A status institution from each of 4 GANHRI regional grouping, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक एंड यूरोप। मतलब इन सारों ग्रुप में से SCA comprises A स्टेटस इंस्टीट्यूशन, मतलब इसका स्टेटस क्या है, A स्टेटस इंस्टीट्यूशन है। और ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज OHCHR, इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर ऑन SCA एंड सर्विस एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ GANHRI एंड SCA। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ GANHRI एंड SCA को क्या कहा गया है, OHCHR, दैट इज ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन 2023 एक्रीडेशन ऑफ NHRCI was deferred, मतलब 2023 में डिफर्ड किया गया था। द करेंट एक्रीडेशन ऑफ GANHRI इज deferred ड्यू टू लैक ऑफ डाइवर्सिटीज इन स्टाफ्स एंड लीडरशिप्स एंड इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब अबाउट NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसका जेनेसिस कैसे हुआ था, इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट, दैट इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993 एज अमेंडेड इन 2006 एंड 2019। तो 2 बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है, 2006 में और 2019 में। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1993 में, थ्रू एन एक्ट। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एज वी हैव हर्ड, एज वी हैव स्टडीड। अब PHRA डिफाइंस ह्यूमन राइट एज अ राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। These rights are guaranteed by Constitution or embodied in an international covenant and are enforced by Court of India. अब अपॉइंटमेंट क्या है, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कंसिस्टिंग ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो मतलब इन चारों पोस्ट के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस मतलब दैट इज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो किन के रिकमेंडेशन में, विद दिस कमिटीज, मतलब हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब टेनवर क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ NHRC विल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years और टिल एज ऑफ 70, मतलब 3 years या फिर 70 years। ओके, मतलब ये इनका एज हो गया, ये टेनवर हो गया। अब चेयरपर्सन एंड मेंबर्स बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो दोनों अपॉइंटमेंट के लिए
एलिजिबल मतलब दोनों रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, दोनों कौन कौन, चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ दैट एनएचआरसी। अब रिमूवल कैसे हो सकता है, वो चेयरपर्सन एंड मेंबर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। मतलब इफ दे आर प्रूफ मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो consultation with the help of Supreme Court they can be removed. A power of National Human Rights Commission ये क्या है, it has all the power of civil court trying a suit under Code of Civil Procedure 1908 and particular in respect of following matter, namely summoning and enforcing the attendance of witness and examining them on oath, discovery and production of any document, receiving evidence on affidavit, re-questioning and public record of copy thereof from any court of office, issuing commission for the examination of witness of documents. Okay, अब composition of NHRC क्या है, there is a chairperson that is retired chief justice of India or a judge of Supreme Court. Okay, 5 full time member कौन है, retired or serving judge of Supreme Court, retired or serving chief justice of High Court, 3 other member to be appointed from the person having knowledge and practical experiences in matter of human rights, one ऑफ whom शैल बी अ वुमेन, तो उनमें से एक वुमेन होनी चाहिए और 3 अदर मेंबर में से एक वुमेन होनी चाहिए, और दे शुड बी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के वाले नॉलेजेबल लोग होने चाहिए। अब 7 डीम्ड मेंबर होने चाहिए, मतलब दे आर डीम्ड टू बी अ मेंबर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड वीमेन। अब फंक्शन क्या है NHRC का, तो इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन राइट वायलेशन ऑन इट्स ओन और ऑन अ पिटिशन बाय अ विक्टिम, intervene in proceeding involving human right violation pending before a court with the approval of such courts. Okay, visit any jail or institution under the control of state government to study living condition of the inmates, मतलब जो भी जेल में लोग रहते होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के NHRC जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अबाउट देयर लिवेबिलिटी, रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और रिव्यू फैक्टर इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट्स ह्यूमन राइट्स। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज CBI। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट in state of West Bengal versus Union of India case 2024 upheld maintainability of West Bengal government's suits against Union over registration and investigation of cases by CBI despite revocation its general consent in 2018। The general consent मतलब you are going to particular state, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को एक बार उनका कंसेंट ले लेते हो, इस बारे में कह रहा है। फिर मोर इन न्यूज़ क्या कहता है, इन सूट फाइल्ड अंडर आर्टिकल 131 स्टेट एक्यूज्ड अंडर यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच एंड वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म बाय unilaterally employing CBI without state prior consent. Article 131 deals with Supreme Court original jurisdiction in dispute between center and और 1 more states। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये क्या कहता है, इसका जेनेसिस कब हुआ था, इन 1963 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संतनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 में। अब ये किनके तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और इसका स्टेटस क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट गवर्न बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946। अब इनके बारे में क्या है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया है विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर ऑफ द कंट्री, और इनका मोटो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, और विजन क्या है, कॉम्बेटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, मतलब so that corruption can be decreased, or curbing economic and violent crime through meticulous investigation and prosecution, fight cyber and high technology crimes, और composition क्या है, headed by director, तो it has a director assisted by special director or additional director, तो who is also assisted by a special director and a additional director, joint director, deputy inspector general, super incident of principal and all other usual rank of police personals. Okay, the panel that select the CBI chief consist of prime minister, तो किनके द्वारा ये सेलेक्ट किए जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 2021 प्रेसिडेंट promulgated 2 ordinances to extend the tenure of director of CBI, मतलब प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ CBI एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो
tenure of director of CBI and ED for up to 5 year for fixed tenure of 2 years, मतलब 2 साल से 5 साल कर दिया गया था. Type of cases investigated by CBI is anti-corruption, economic offenses or special crime and suo moto. Okay, these are the cases handled by CBI. अब consent of state of CBI ये क्या कहता है? General consent में सबसे पहले आता है CBI is not required to seek fresh permission every time it enters the state in connection with investigation for that case. फॉर एवरी केस, मतलब सीबीआई को कंसेंट हर बार लेने की जरूरत नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. और सेक्शन 6 ऑफ DSPE एक्ट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू सीबीआई ऑफिसर. तो सेक्शन 6 क्या कहता है? DSPE एक्ट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू सीबीआई ऑफिसर. तो वो अपना कंसेंट दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, जिसमें से स्पेसिफिक क्या है? सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केसेस. अभी अब कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर सीबीआई का स्पेसिफिक में ये कहा जाता है सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केसेस फॉर हिज कंसेंट. ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अप टू सीबीआई डिस्कस किया है. अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज़ के लोकपाल वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे. होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो and please do like and subscribe my channel. Thanks.